Hello students, today I am explaining you about Living Word Part 2 of class 11th. In my first video, I told you about differences between living and non-living organisms, or what are the specific characteristics which can differentiate living from the non-living. Majorly there we studied about two actually characteristics. One is growth and another one is reproduction. Growth is not a characteristic feature because in non-living organisms they also show external growth known as accretion. Similarly, if we check about reproduction, though it is shown only by living organisms, not by non-living organisms, but there are certain living organisms like worker bees, mules, like sterile couples, which are not able to reproduce. So that shows that both growth and reproduction, these are not the defining characteristic features of living organisms. Today we'll study about third feature which can differentiate living organism and non-living, and after studying we'll check whether it is a defining feature or not. Before going for metabolism, let me tell you that in our body various kind of chemicals are present, and these chemicals, these may be proteins, these may be lipids, carbohydrates, nucleic acids, these proteins or these chemicals, they react together and undergo certain chemical reactions which are also known as biochemical reactions, and these chemicals they get changed into another form of chemical. Sometimes some interconversions they occur inside these chemicals. Now when conversions happen, when exchanges happen, then there is liberation of energy and formation of new material, and this energy is used for building and functioning of the living matter. Next is about definition. Now you will be more clear that हमने अभी क्या पढ़ा कि जो भी केमिकल्स होते हैं वो केमिकली रिएक्ट करते हैं और आपस में वो इंटरैक्ट भी करते हैं. So similarly, sum total of all chemical reactions occurring in an organism due to specific interactions among different types of molecules within the interior of cell. अब देखेंगे इस डेफिनेशन में एक एक चीज क्लियर है आपको कि जो भी केमिकल रिएक्शन, टोटल केमिकल रिएक्शन एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं, उनमें पहले क्या होता है, स्पेसिफिक इंटरेक्शंस होती हैं अमंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये सारे केमिकल रिएक्शंस कहाँ होते हैं, इनसाइड द सेल. And during this chemical reaction, what happens? There is exchange of matter and energy between an organism and its environment. This is also a kind of transformation of matter and energy within an organism. मेटाबॉलिज्म की टाइप्स करने से पहले लेट मी टेल यू देयर आर टू टर्म्स जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रही हैं, दैट इज इन वीवो एंड इन विट्रो. इन वीवो क्या होता है, सारे केमिकल रिएक्शंस विच आर अकरिंग इनसाइड द बॉडी इन अ नेचुरल वे, और इन विट्रो होता है जो भी केमिकल रिएक्शंस आर्टिफिशियल कंडीशंस में लैब्स में होते हैं. नाउ मेटाबॉलिक रिएक्शन which is similar despite differences in the structure and function of cells in different living organisms, and these metabolic reactions which occur inside the body in a natural way are termed as in vivo, whereas there are certain reactions which occur outside the body, जैसे IVF में होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, कि जो भी फर्टिलाइजेशन है, जो भी रिएक्शंस है, दे आर अकरिंग इन टेस्ट ट्यूब इन आर्टिफिशियल कंडीशंस, बट वहाँ पे हमें कंट्रोल्ड कंडीशंस रखनी पड़ती हैं. जैसी कंडीशन इनसाइड द बॉडी है वैसी ही कंडीशन आउटसाइड द बॉडी मेंटेन करनी पड़ती है, और एसेप्टिक और स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करना पड़ता है लैब में. ऐसी कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं टर्म इन विट्रो. So in short, in vivo for natural conditions, in vitro for artificial conditions. Now there are two type of metabolic reactions, anabolic and catabolic. Anabolic reaction, it is actually the constructive form where there is formation. If we'll check, I'm giving you here one example, that there is formation of glucose from carbon, hydrogen and oxygen. Now because यहाँ formation हो रहा है तो energy is required, it is utilized. On the other hand, in catabolic there is breakdown. Like large particles of proteins or polypeptides, they are broken into simpler units of amino acid. So whenever there will be breakage, what will be there? Energy will be liberated. So in case of anabolic condition, which is a constructive form, energy is required. On the other hand, in catabolic, the energy is
liberated. So if we check that metabolism is shown by non-living cells also, no. So all the living organisms, they show metabolism, but non-living organisms don't show metabolism. This shows that metabolism is well-defining feature of living organisms. Now fourth feature is cellular structure. Body of all living organisms is made up of cells and their products, whereas non-living organisms, they are not made up of cells and products, they are made up of atoms and molecules. So cellular organization of body of all life forms is also a defining characteristic feature of living organism. Another important feature is consciousness. कॉन्शियसनेस क्या होता है, कैसे हमें पता चलता है कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है? उसके लिए हमें क्या होता है, बाहर से स्टिमुलस आता है, बॉडी उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करती है. जब बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं. मीन्स सेंसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग मैकेनिज्म. सेंस हम कैसे करते हैं? सेंस जो भी स्टिमुलस है दैट इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स. वी नो अबाउट आवर सेंस ऑर्गन्स. जैसे मैं एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देती हूँ इसमें कि कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें पता है हमारे सामने जो है हॉट थिंग्स आती है, कोल्ड थिंग्स आती है, कुछ चीज़ें जो है हम फील करते हैं, जैसे हॉट और कोल्ड फील है. सो फीलिंग इज एक्चुअली व्हेन वी फील सच कंडीशन दैट इज द स्टिमुलस एंड वी आर रिसीविंग इट थ्रू आवर स्किन. सो स्टिमुलस इज रिसीव्ड थ्रू आवर सेंस ऑर्गन and accordingly we respond back. So that is known as consciousness. Living organisms, they can sense and respond to external environment. They can respond to changes of the surroundings. So और response कैसा होगा? ये सडन भी हो सकता है और स्मूथ भी हो सकता है. जहाँ अचानक से हमें नजर आता है कि कोई चीज जलती हुई चीज है, बर्निंग है, वो सडन आता है और उसके अकॉर्डिंगली सडन ही हम उस पर रिस्पॉन्ड बैक करते हैं. Stimulus can be physical, chemical or biological. So consciousness is that we have ability to respond to whatever happening in the environment by sensing through our various sense organs. अब सिर्फ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स ही नहीं है जो सेंस करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस को. स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दे ऑल्सो can sense and they have consciousness, though they don't have sense organs, but still they have certain special features, special chemicals, special hormones and enzymes which are released inside the body to prove consciousness in them. Similarly, plants they respond back to two types of factors: abiotic, which are non-living, and biotic factors. Now in abiotic factors, plants respond to temperature. Phototropism we have studied. Plants respond to light. Hydrotropism, that is water, and even to pollutants also. Pollutants में भी प्लांट जो है रिस्पॉन्ड बैक करते हैं. अगर हम बायोटिक कंपोनेंट देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहां पे भी उनका इफेक्ट होता है. कैसे? फोटो पीरियड से. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि फोटो पीरियड ड्यूरेशन. फोटो पीरियड इज व्हाट? दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ प्लांट टू द लाइट. सो ड्यूरेशन ऑफ फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स which may be plants or animals. अगर प्लांट्स में पॉलिनेशन होना है, रिप्रोडक्शन होना है, वो अफेक्ट करता है किस चीज से? ड्यूरेशन ऑफ फोटो पीरियड पे. सिमिलरली कुछ सीजनल ब्रीडर्स होते हैं जिनकी एग लेइंग, जिनका फर्टिलाइजेशन वो चाहे इंसेक्ट्स हो, बम्बल बीज हो, बटरफ्लाइज हो, उनकी फ्लावर्स में होती हैं, तो उनका सीजनल ब्रीडर्स का भी जो रिप्रोडक्शन है वो अफेक्ट होता है ड्यू टू फोटो पीरियड ऑफ द प्लांट्स. नाउ नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट टू टर्म्स, बहुत क्लोजली रिलेटेड है, कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस अभी हमने चेक किया कि इट इज शोन बाय ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल्स हैं. सो कॉन्शियसनेस इज एबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस विच इज शोन ओनली एंड ओनली बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बट अगर हम ह्यूमन बीइंग में चेक करते हैं, हमारे अंदर वो सेल्फ कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस है. दैट when a few of living organisms like human beings are aware of themselves, that is self consciousness, inner self, which is not present in plants and all living organisms. So self consciousness is not a well defining feature of living organism. So जब क्वेश्चन आएगा
तो आप कॉन्शियसनेस पे टिक करोगे कि कॉन्शियसनेस क्या है, वो एक डिफाइनिंग फीचर है, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं। यहाँ कभी कभी क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग कोमा। जो कोमा में पेशेंट है, जो ब्रेन डेड है, क्या उनमें कॉन्शियसनेस है? जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ब्रेन वर्क नहीं करता। मेटाबॉलिकली दे आर एक्टिव, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉर्मल, सम ऑफ द ऑर्गन्स आर वर्किंग, बट व्हाई दे आर नॉट कॉन्शियस? बिकॉज जो भी उनको स्टिमुलस रिसीव होता है, उस स्टिमुलस से, जिस भी तरह का स्टिमुलस है, रिस्पॉन्सेज नहीं है, कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। सो नॉट गिविंग रिस्पॉन्स, नो मैसेज फॉर एनी काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी फ्रॉम ब्रेन, दैट्स व्हाई वी टर्म देम दैट दीज आर नॉट कॉन्शियस। फिर थोड़ा सा जब सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ लिया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सारे फीचर्स भी हमने पढ़ लिए हैं, तो उसके बाद आगे है कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चेक करते हैं, देन दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। अब स्पेसिफिक सेल्स स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, स्पेसिफिक टिश्यू फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनकी इंटरेक्शन से कुछ इमर्जेंट प्रॉपर्टीज निकलती हैं। सो सेल्स दे कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज which combine to form organs. Single cell cannot perform that function which can be performed by tissues. Similarly, organs can better perform rather than tissues. So this is because of underlying interactions between, underlying with the specific interactions between cells, tissues, organs. And this leads to emergent properties. इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। कॉम्प्लेक्सिटी तो सिंपल है, सेल सिंपलेस्ट थे, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो अंडरलाइंग इंटरेक्शंस होते हैं सेल ऑर्गन टिश्यू में, वो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज बनाते हैं। अब हमने जब सारा चैप्टर पढ़ लिया, जिसमें हमने फीचर्स स्पेशली पढ़ लिए हैं कि क्या कौन कौन से फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो डिफरेंशिएट कर पाते हैं, और स्पेशल फीचर्स कौन से जिनको हम बोलते हैं कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो वो अब तक हमारे पास 3 आए हैं। पहला कौन सा है? मेटाबॉलिज्म, सेकेंड इज सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड इज कॉन्शियसनेस। ये तीनों जो है ये वेल डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कौन से फीचर नहीं है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये तीनों फीचर्स जो हैं ये दीज आर नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जब हमने सारे फीचर्स पढ़ लिए और हमें कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना, तो हम सिंपली ये नहीं कह सकते दोज ऑर्गेनिज्म विच आर अलाइव दे आर नोन एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल नहीं। अब हमको साइंटिफिकली बहुत स्पेसिफिक वे में, आपको चाहे आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ लीजिए, चाहे आप सीबीएसई की पेपर देंगे उसमें भी बहुत आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। किसी आप केवीपीवाई का एग्जाम देते हैं, ओलंपियाड्स का देते हैं, नीट का देते हैं, किसी में भी, तो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये जो मैं आपको 5 फीचर स्पेसिफिकली बताने जा रही हूँ, एक एक ऐसे ही आपने याद करना है। वो है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जो अपने आप डुप्लीकेशंस कर सकता है, रेगुलेटिंग, जिसका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होते हैं, इवॉल्विंग, सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इवॉल्व होते हैं, इंटरैक्टिव, अभी आपने पढ़ा उनमें कि सेल ऑर्गन टिश्यू में इंटरैक्शंस होती हैं जिसके कारण इमर्जेंट प्रॉपर्टीज बनती हैं, और दे आर केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये सारे फीचर्स को कलेक्टिवली मिला के बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म can self-replicate, regulate, evolve. They are having interactive system which is capable of responding to external stimulus. आज के लेक्चर में मैंने आपको लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कंप्लीटली डिफ्रेंसिएशन बताया है और स्पेशल फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म से बताए। नेक्स्ट लिविंग वर्ड में हमारा अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर है और सिस्टमेटिक है। 2020 में तो अभी जो हमारा सिलेबस आया है सीबीएसई, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्लास 11th में से वो वाला पोर्शन जो है डिलीट कर दिया है, बट मैं फिर भी उसको अपने एक लेक्चर में कंप्लीट करूंगी, एक वीडियो में कंप्लीट करूंगी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई नीड योर comments also. You can send your queries to my email ID also, which is jyotsna_nrcpp@yahoo.com. Thank you so much for watching my video.